Okay, so everybody can hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any problems till now? Anything that you want to ask? Okay, so we were discussing about images acquisition, sensing, resolution, okay, sampling, quantization. So I think I had stopped here. So representation, I'll just briefly go through this. If I have m rows and n columns, so m cross n matrix hoga, and from 0 to m minus 1, I will number my rows. From 0 to n minus 1, I will number my columns, and each intersect will give me a pixel. ठीक है? And अगर हमारा 8-bit image है, I will have a range of 0 to 255. Now, how are images acquired? So we were looking at this. Agar illumination hai, illumination energy source, it could be a bulb, it could be a tube light, it could be a natural source such as the sun. कोई भी illumination source है, जो कि basically it is giving the energy, and this particular body, for each and every part, there's a bit which is reflected, part is absorbed or transmitted. And according to the reflected light, this imaging system then makes an image out of this entire object. So, अब एक imaging जो sensor है, we are looking at that. So, इसके अंदर in this imaging system, we will have a lot of sensors. हर एक sensor किस तरह का होगा? We are trying to understand this. So, energy incident होगी, इधर ये sensor है. Filter क्या होगा? Filter is like your it's like a sieve, it's like a chani. So जो भी हमें पास करना है वो लाइट अंदर पास हो जाएगी. So if I have an infrared filter, it will allow the infrared to pass through, it will block the others, right? So according to the imaging that I am doing, X-ray में क्या होगा? X-ray वाला part will be passed and the other will be filtered out. So depending on my filter, the energy goes inside, and then there's a sensing material here. Sensing material is generally photoreactive material है, जो कि इस पर्टिकुलर एनर्जी से सेंसिटिव है, और वो क्या करेगा, इसके हिसाब से सेंसर से इट विल क्रिएट अ वेव, वोल्टेज वेव फॉर्म. सो क्या इट इज कन्वर्टिंग दिस इनटू अ सिग्नल, एंड एक हाउसिंग है टू इनकेस दिस इंटायर सेंसर. नाउ क्या है ये वोल्टेज वेव फॉर्म? इट कुड बी इन फॉर्म्स ऑफ बाइनरी. वोल्टेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 and 1 फॉर्म में, तो ये डिजिटल इमेज बन जाएगी. फॉर ईच एंड एवरी such sensor, I will for each and every pixel I have a sensor. तो अगर इस तरह का हमारा एक लाइन है, what will happen? I will get a line of input. Is it okay? क्या होगा कि मेरे पास अगर एक कैमरा है जिसमें एक पतली सी लाइन है इन सेंसर्स की, तो क्या होगा, एक लाइन बाय लाइन इनपुट आएगा. अगर मेरे पास एक अरे है of image sensors, so what will happen? I will get an image array instantaneously, because energy incident on each and every pixel is converted like this into a waveform, and for every pixel I have a value of digital value 0 or 1. Are you able to understand this? Is there any problem? No. Okay, so array, अगर एक हमारे पास array है तो हमारे पास we are getting a 2-dimensional image. Here I am getting a 1-dimensional image. अब क्या होता है, स्कैनर्स देखे हैं तुम लोग ने? सो स्कैनर में क्या होता है, इस तरह का एक पतला सा एक स्ट्रिप होता है, एंड इट गोज लाइक दिस. अब यू कैन इमेजिन अगर इस तरह का हमारे पास एरे है तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज आई विल हैव सो मेनी सेंसर्स फॉर ईच एंड एवरी पिक्सल आई हैव अ सेंसर, सो दैट इज व्हाई द कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ इफ आई हैव अ लाइन हियर एंड आई एम एबल टू मूव दिस लाइन, सो क्या होगा कि पहले हमने इधर से स्टार्ट करा, पहले हमने यहाँ पे कैप्चर करा, फिर इधर कैप्चर करा, ऐसे करके एक एक लाइन मेरे पास पूरी इमेज की आ रही है, एंड देन आई कैन कंकैटिनेट इट यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स टू बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई हैव one line image out per increment of linear motion. So this is a sensor strip. Is it clear? So scanners में generally इस तरह का यूज होता है. Even in photocopiers, you see एक bright light जाती है पूरे में, राइट? जहां जहां ये ट्रैवल कर रहा होता है वहां से ऐसे नीचे लाइट होती है और ये एक ट्रैवल करता है ऐसे. तो
जहां ट्रैवल करता है वहां वहां का एरिया कैप्चर करता चलता है और वहां से हमारे आउटपुट आ जाता है. सो दिस इज लेस कॉस्टली. इज इट ओके? इज दिस फाइन? सेंसर स्ट्रिप Yes, वाला yes. पार्ट ठीक है. अब ऐसे ही अगर हमें वी आर लुकिंग एट कैट स्कैन सपोज है. कैट स्कैन में क्या होगा, मल्टीपल एक्सरेज है. तो अगर इस तरह से सोचो कि एक 3D ऑब्जेक्ट है मेरे पास एंड अभी हम इसमें एक इस तरह का हमने एक सर्कल कर दिया, एक रिंग है एंड देन देयर इज एन एक्सरे सोर्स हियर एंड सेंसर रिंग. पूरी ये पूरे मटेरियल में ये सेंसर रिंग है चारों तरफ. आई होप दिस इज विजिबल. ये वाला पार्ट सेंसर रिंग है, ये पूरी बीच में इसमें एम्बेडेड है. सिंपल. अब क्या होगा, एक्सरे शूट करेगा एंड इधर भी सेंसर है तो वो इधर पार्ट वाला पार्ट इसका इधर से जब इधर से इंसिडेंट होगी तो इधर से मल्टीपल शूट ये एक्सरे जा रही है, इसका यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा. फिर ऐसे ये रिंग घूम रही है तो ये हर डिमेंशन को ऐसे पूरे क्रॉस सेक्शन को ऐसे अलग अलग ये इट विल बी एबल टू टेक एन इमेज. जब ये पूरा पार्ट इसका एक पूरा सेमी सर्कल इसका इतना पार्ट, आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज. सब कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह का एक पूरा एक इतना पार्ट, एक पूरी रिंग जो है, इतना क्रॉस सेक्शन हमारा, सपोज इतना पार्ट हमारा सारा सेंस हो गया. देन दिस रिंग कैन मूव फॉरवर्ड ऑल्सो. सो ये रिंग आगे बढ़ी लीनियर मोशन में या फिर इसको हम पीछे कर सकते हैं, आइदर वेज. सो दिस बॉडी कैन ऑल्सो बी मूव्ड एंड देन इफ दिस इज फिक्स्ड, बॉडी आगे मूव हुई तो ये आगे वाला पोर्शन कैप्चर हो गया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करके हमने पूरा कैप्चर कर लिया. और फिर ये सारे क्रॉस सेक्शंस को ऐड करके एंड आई एम एबल टू जनरेट अ 3D मॉडल ऑफ दिस एंटायर ऑब्जेक्ट. So this is how 3D reconstruction is done. Is it okay? We could have had a bigger cylinder or सब में sensing material हो सकता था, but the cost would go up. So keeping the cost in mind and the complexity in mind, we decide that हमें क्या चीज चूज करनी है. तो हम एक रिंग चूज करेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसको मूव करेंगे. ये पार्ट क्लियर हो गया? So this is how you sense your images. अब there are certain important basically jargon है ये. resolution of an image हम लोग बात करते हैं. then we talk about spatial resolution like I was saying. spatial resolution एक होता है, एक temporal resolution भी मैंने बताया था. I don't know if you people remember. मैंने बोला था temporal resolution, किसी को याद है क्या होता है? So we have three kinds of resolutions. We have pixel resolution, pixel count resolution, spatial resolution and temporal resolution. Pixel count resolution क्या हुआ? Pixel count is simply the amount of pixels a digital image contains or is made up of. It is expressed in either megapixels or pixel dimensions. So अब अगर हम बोलते हैं कि this is a 5x5 image. So it means I have 5 rows, 5 columns and I have 25 pixels. Now generally the size is huge. We have lots and lots of pixels. So that is why megapixels में आ जाता है. 1 mega is basically 1000 pixels. So 1 megapixel is equal to 1 million pixels. So that is why we use the term megapixels. Otherwise बहुत सारे zeros आ जाएंगे pixels के terms में. Pixel dimensions represent another more descriptive method of designating pixel count resolution. तो हम लोग अगर पिक्सल काउंट अगर हम बता दे रहे हैं, जैसे होता है ना 5 मेगापिक्सल कैमरा, यस इस तरह से होता है कुछ. Yes, ma'am. So what do you understand by this? मैम जो उसके पिक्सल होंगे. हाँ. हेलो. यस बेटा बोलो. मैम जो उसके पिक्सल होंगे यानी मैम वो जितने भी हम इमेज क्लिक करेंगे वो सब 5 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन में आएंगे सर. मैम करेक्ट. सो वी हैव पिक्सल काउंट रेजोल्यूशन. देन वी हैव स्पेशियल रेजोल्यूशन. स्पेशियल रेजोल्यूशन अभी तक मैं बात कर चुकी हूँ कई बार भी. स्पेस कितना हमारे पिक्सल्स पर इंच, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द स्पेशियल मेजरमेंट. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने DPI भी सबने सुना होगा, डॉट्स पर इंच. किसमें यूज होता है? प्रिंटर्स में यूज होता है. अगर देखा हो तो कितने DPI का प्रिंटर है, कितने डॉट्स पर इंच है. जितना DPI होगा उतनी अच्छी प्रिंट आउट निकलेगी. सो 1 इंच में हम कितने डॉट्स दे रहे हैं, 1 इंच में जितने पिक्सल्स होंगे
तो हम जब when it comes to practical images, when you see in a magazine, when you see in a printout, तो जितने पिक्सेल्स पर इंच होएगा उतना हमारे पास it will be a better spatial resolution. Is it okay? So spatial resolution does not apply to an image file, but only the physical image. You have to remember when we're talking about physical image, that is I was saying a printout of an image. In the newspaper, कुछ newspapers में color printouts बहुत beautiful होते हैं. You're not able to actually understand that it's a beautiful image, proper image. And in some, it's very pixelated because they are using low resolution images, right? Pixels per inch is less. So कुछ क्या होगा? दिस पिक्सेलिंग हो जाती है, बहुत फट सी जाती है इमेज, राइट? अगर क्या करो, लो रेजोल्यूशन इमेज को बहुत बड़ा करके प्रिंट आउट लेने की कोशिश करो, टेक्स्ट नहीं अच्छा आएगा. यू पीपल हैव रियलाइज दिस? देखा है इन प्रैक्टिस? yes or no? Yes. So that is my spatial resolution and print resolution. Okay, now storage requirement, I think I have already talked about it. So storage requirement will depend on क्या चीज, intensity resolution and spatial resolution. अब intensity resolution से हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग के पास कितने ग्रे वैल्यूज है या कितने बिट्स पर पिक्सल इज अलाउड फॉर अस. सो व्हाट विल, देखो अगर हमारे पास इफ आई हैव 1 bit per pixel, then what is the number of colors I can identify? वन बिट पर पिक्सल में कितने कलर्स दिखेंगे? 2 colors. Similarly, if I have 8 bit per pixel, I will have 256 colors. Correct? So intensity resolution इस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ इंटेंसिटीज हम देख पा रहे हैं. हियर जैसे probably कुछ ही डिफरेंशिएट, जैसे 1 color, 2 color, 3, 4, 5, 6. So 6 maybe it is a 3-bit image. So जितनी हमारे पास इंटेंसिटीज होंगे उतने सारे हमारे ग्रे लेवल्स होंगे. So intensity resolution will depend on bits per pixel. And spatial resolution किस पे डिपेंड करेगा? Number of pixels in that area. So अभी हमारे पास जैसे इतना जितने भी ग्रिड है, राइट, इतने ग्रिड्स है. अगर हम इन ग्रिड्स को छोटा कर दें और इसी को हाफ कर दें ऐसे, सो क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन विल इंक्रीज बिकॉज ये छोटी छोटी पिक्सेल्स हो जाएंगे. एक पिक्सल के 4 पिक्सल बन जाएंगे अगर हाफ हाफ पूरा कर देते हैं. तो क्या होगा? बेटर रेजोल्यूशन एंड बेटर, ये इसके जो इतने सारे खराब कर्व ये दिख रहे हैं पिक्सेल्स, इट विल बिकम स्मूदर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Okay. So we had discussed this. What is the storage requirement? So 1024 into 1024 binary image है. So I'll need इतने pixels और एक ही bit चाहिए तो इतना हो जाएगा. This is all theoretical. You have to remember. Binary image actually store कैसे होती है? 8-bit image की तरह ही होती है. तो actually कोई ऐसा नहीं है, ये bytes में convert करा है, but actually इतने bytes ही होएगा because 1 bit कभी कोई ऐसा होता नहीं है. कोई हमारे कंप्यूटर में सिस्टम नहीं है कि हम एक ही bit यूज कर लें. फिर 24 कलर इमेज, यस इसमें है 24 है, तो हमें कितने 3 बाइट्स चाहिए होंगे. 3 बाइट्स एंड मे बी अगर बिट्स में कर रहे हैं तो 3 into 8 24. So many kilobytes. Now sampling and quantization, you have to understand this very well. So digitizing the coordinate value is called sampling. Digitizing the amplitude value is called quantization. अब इसको समझने के लिए let's understand this figure. सपोज ये एक इमेज है, सबको दिख रही है इमेज, और ये एक लाइन दिख रहा है A to B. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन दैट एक लाइन सेंसर है हमारे पास और हम इस लाइन सेंसर से इस पूरी इमेज A to B की पिक्सल की वैल्यूज ले रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा, इस इमेज को लिया और हमने कुछ इंस्टेंसेस कुछ ब्रेकअप करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ कहाँ सैंपल करेंगे सिग्नल को. इसका क्या मतलब है, हम कितनी कितनी देर में हम बेसिकली क्या रेजोल्यूशन है हमारा, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम कंटिन्यू और पास भी कर सकते हैं अगर हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन हाई है तो, हम और दूर भी कर सकते हैं अगर हमारा कम है तो, बट कुछ ना कुछ हम सैम्पलिंग करेंगे किसी किसी इंस्टेंस पे. सो हम क्या करेंगे,
हम वैल्यूज लेंगे इधर डिमेंशन में, ये हमारा सैम्पलिंग हो गया, और हम कितने ग्रे लेवल्स इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? हम लोग कितनी 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 इंस्टेंसेस पे हम लोग सैंपल ले रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन का, दैट इज माय सैंपलिंग। व्हाट आर द कलर्स दैट आई एम एबल टू सी, दैट्स माय क्वांटाइजेशन। अब देखो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, पहले लेट्स गो फ्रॉम हियर, ए से चल रहे हैं। ए में क्या होगी इंटेंसिटी? ए पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी? अगर 8 बिट इमेज है तो क्या होगी इमेज वैल्यू इंटेंसिटी की? कोई बताएगा? ए इज व्हाट? वाइट है 255 है ना, तो 255 हो गई। ऐसे ही फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने हो सकता है इतने इतने, यू कैन सी हियर, इधर इमेजिन करो ये इतने में है, तो यहाँ पे फिर से सैंपल कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, नीचे वाला इधर पूरा ये पार्ट ये सुपर इम्पोज हो गया है। तो हमने ए पे देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है अभी भी इंटेंसिटी? क्या है इंटेंसिटी? वाइट ही है। सो 255 255 255 255, बीच में हो सकता है थोड़ी थोड़ी नॉइज आए, इसलिए वो ऐसे दिखा रखा है क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स है। देन सडनली क्या हो गया? ड्रॉप कर गई, डार्क हो गया कि नहीं? सो डार्क हो गया तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हमें कौन सा कलर दिख रहा है? हमें इनमें से ये वाला कलर दिख रहा है, हमने इसको ये इधर मैप कर दिया। फिर यहाँ से इधर बढ़े बढ़े बढ़े, क्या हो गया? देखो इधर लाइट है तो इसकी वजह से थोड़ा सा लाइट है, पिक्सेल्स दिख रहे हैं ये सब लाइट होते हुए। Yes. देखो, सो यू कैन सी दैट इट इज बिकमिंग लाइटर, एंड लाइटेस्ट कहाँ पे? यहाँ पे लाइटेस्ट हो गया क्योंकि बहुत सारा वाइट का इसका इफेक्ट आ रहा है, सो इट बिकम्स लाइट हियर। इधर लाइट हो गया, फिर इधर जाते जाएंगे तो क्या हो गया? डार्क होता, इधर से डार्क होने लगेगा, डार्क होने लगेगा, यहाँ पे सबसे डार्क होके फिर एकदम से व्हाइट हो जाएगा। यस और नो? Yes, सो दिस इज हाउ यू कैप्चर। तो अगर इसको बगल में देखोगे तो ऐसे हमने देखा, फिर उसके बाद ये हमारी इंटेंसिटीज है। अब ये डार्क हो गई, डार्क हो गई, डार्क होती गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क है, यहाँ तक गया, एंड देन इट सडनली बिकम्स व्हाइट, all these pixels. So I'm capturing all the intensities. Now what am I doing? ये तो हमारा सैम्पलिंग हो गया ये वाला। अब हमने इस सिग्नल को हमने ब्रेकअप कर दिया कि हम कहाँ कहाँ वैल्यूज लेंगे। पहले तो इसको कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस कर दिए कि हम यहाँ सिग्नल ले रहे हैं, ऐसे 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 इक्वल इंटरवल्स पे, जितने भी हमारे पास वैल्यूज होंगी उस हिसाब से हमने यहाँ पे ले लिया। एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस इंटेंसिटी वैल्यूज हमारे पास जितनी बिट्स ऑफ रेजोल्यूशन अवेलेबल है, आई विल ट्राई एंड क्वांटाइज। हमारे पास अगर 256 लेवल्स होते तो हम अलग अलग 256 लेवल्स इधर बना पाते। Are you getting the point? Here I would have made 256 levels if I would have had 8-bit image, तो बहुत सारे लेवल्स हो जाते हैं, इसी में बहुत सारे ग्रे स्केल हो जाती है हमारे पास। बट अभी हमारे पास we have 1 2 3 4 5 6 7 8 pixels because this is a 3-bit image, so that is why I have only these values. So एक रेंज के लिए व्हाइट हो गया, एक रेंज के लिए थोड़ा डार्क हो गया, एक रेंज के लिए ब्लैक हो गया, एंड अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन दिस मैंने हर एक पिक्सल की वैल्यू निकाली। सो इसमें क्या हो गया? दिस वुड बी 0 0, नहीं सॉरी, दिस विल बी 1 1 1 1, एंड इधर वाले जो पिक्सेल्स हैं अभी कोई 0 0 नहीं है, बट ये वाला क्वांटाइज करोगे तो हो सकता है ये 0 0 0 1 होता, तो ये वाले इधर ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे करके सबको वैल्यूज मिल जा रही है। अंडरस्टूड? दिस इज गेटिंग मैप टू 1 1 1 1, दैट इज 7। सो 0 to 7 हमारी रेंज हो गई इंटेंसिटी की। अगर मेरे पास 256 लेवल्स होते तो आई वुड हैव मैप्ड फ्रॉम ये। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this is known as sampling and quantization. So we are sampling across this and quantizing the color values. So remember that a digital image is always only an approximation of a real world scene.
जितना हमारे पास हाई रेजोल्यूशन होगा, जितना हमारे पास सैम्पलिंग ज्यादा होगी, उतना विल बी क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड सीन. स्पेशल रेजोल्यूशन हम लोग ने बात कर ली ऑलरेडी, 5.1 मेगापिक्सेल्स. नाउ लेट्स लुक एट इट प्रैक्टिकली. सो स्पेशल रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑफ द इमेज and number of bits necessary to adequately show the intensity resolution. So अब हमारे पास suppose number of pixels कितने हो जाएंगे? Number of rows into number of columns, that's clear. और bits कितने चाहिए होंगे? अगर 2 to the power m, अगर bits m चाहिए हैं, then I will have 2 to the power m intensity levels. So total size क्या हो जाएगा? Number of pixels into m. This we have already discussed. और color images पे 3 planes हो जाएंगे. Now let's look at the spatial resolution. Suppose हमारे पास ये image है 1024 cross 1024. This is the image. Space में क्या हुआ? अब हमारे पास इसमें 1024. You can imagine that there is a grid of 1024 across 1024 rows and columns. अब हमने next क्या करा? इसमें हमने कह दिया 512 cross 512 इसको कर दो. कैसे कर सकते हैं? Anybody can give me an idea how to do this? मेरे को आधा रेजोल्यूशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक से बता सकते हो कैसे चेंज करें? Anybody? How can I do this? मैम सैम्पलिंग का जो साइज है वो स्मॉल कर देंगे. अच्छा, लेकिन अब हमारे पास तो इमेज है, तो अब हम एक्विजिशन तो कर नहीं रहे हैं, हम इस इमेज से इस इमेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास 4 क्रॉस 4 है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू 2 क्रॉस 2. एक तो ये हो सकता है कि ये वाले पिक्सेल है, अब ये 4 पिक्सेल लेके हम इनकी इंटरपोलेशन, पता है क्या होता है इंटरपोलेशन? क्या होता है? I'll give you a small example. No मैम. इंटरपोलेशन नहीं पता है. अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर तुम लोग का मिड सेमेस्टर मिस हो जाता है, राइट? मिड सेमेस्टर सपोज फॉर 20 मार्क्स एंड फॉर मेडिकल रीजंस यू आर नॉट एबल टू गिव योर मिड सेमेस्टर्स, आपका मार्क्स 80 में आता है. Yes, ma'am. हाँ, तो सपोज यू गॉट 60 आउट ऑफ 80. अब हम क्या करेंगे कि हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इन्हीं मार्क्स से अगर आपको 20 में मार्क्स होते तो क्या कहते हैं, कितने मिलते? तो हम डिवाइड बाय 4 करके कह देते कि भाई इस हिसाब से इसको 15 मार्क मिल जाते हैं. यस, और फिर हम 15 मार्क ऐड करके 60 में 75 करके आउट ऑफ 100 दे देते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरपोलेशन. वी आर अज्यूमिंग अ लीनियर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कि ये ऐसे है. बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली स्लोप से डिवाइड करके और निकाल देते हैं. ये याद आया सबको? y = mx + c एक फॉर्मूला होता है, और हम लोग कोई भी वैल्यू अगर बीच की निकालनी है, बाहर की भी निकालनी है, एक्सट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, हम डायरेक्टली 100 से भी निकाल सकते थे. हम कह रहे थे 60/100 इंटू 80 था, 60/80 इंटू 100, तो हमारे पास 75 वैल्यू आ जाती. सो दिस इज एक्सट्रापोलेशन. सो हम इंटरपोलेट कर सकते हैं इन चारों वैल्यूज को लेके, और हम बीच की वैल्यू मीन फाइंड आउट करके यहाँ रख दें, या फिर इन चारों की ले, फिर इनका मीन निकाल के यहाँ रख दें, फिर ऐसे इन चारों का ले, इनका मीन इधर निकाल दें. यस, दैट इज पॉसिबल. Otherwise, what we could do is we can ignore. The simplest thing is कि हम लोग अगर हमारे पास रेजोल्यूशन है इस तरह का, सपोज 4 है, I will say इसको रख लो, इसको इग्नोर कर दो पूरे को, इसको रख लो, इसको इग्नोर कर दो पूरे को. सिमिलरली इसमें रख लो, ये वाला पूरा इग्नोर कर दो, ये वाला रख लो, ये वाला पूरा इग्नोर कर दो. तो कितने 4 पिक्सल आ गए मेरे पास, वही 4 पिक्सल यहाँ पे रख दिए. So I could do resolution like this. When I have very high resolution, I can actually omit. So this will be your assignment. Your first assignment today will be
to be able to use, so you have to convert an image into half rows by half columns, and you have to discard the alternate rows and alternate columns. So this will be your assignment for today. You will be doing it, and I will discuss it. ये lab का assignment है. See, I'll keep giving you lab assignments. अभी तो classes online offline हो जाएंगी, तो उसमें अच्छा रहेगा. You'll be able to do it in the labs also. But इसको घर पे करो, and you can submit the solution, and I will evaluate it, and then I'll discuss it also. Okay. So अभी इसमें क्या करा? अभी हमने यही वाला करके, and इसमें हमने reduce करते जा रहे हैं. So 1024 into 1024. फिर आधा रेजोल्यूशन करा, तो यू विल सी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्या इन दोनों में? नहीं दिख रहा है, राइट? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? No, ma'am. राइट, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई रेजोल्यूशन, इट इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. फिर हमने ये देखो, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकेंड इमेज है, जिसमें हमने फिर उसको दोबारा से क्या करा कि बड़ा करके दिखा रहे हैं, ताकि दिखे कि क्या फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फिर उसके बाद देखो इधर यू कैन स्टार्ट सीइंग सम डिफरेंस. दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे पिक्सेलेशन दिख रहा है. देखो इनको नोटिस करो, यहाँ पे जो एजेस है ना, व्हेन यू सी दीज एजेस यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस हियर, ये सब वैल्यूज में. इसको देखो थोड़ा सा, तो ये इधर आया. अब इधर देखो, इधर दिखने लग गया. देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज हियर. हर चीज थोड़ी पिक्सेलेट हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं इनको. So these are unnatural artifacts. The natural edges, the natural coloration is lost. अब देखो काफी difference दिख रहा है. Is it visible to everybody? Can you see the kind of resolution that you've lost? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अब तो और बहुत obvious होगा. And then Yes, ma'am. completely gone, right? Yes, ma'am. So you can see spatial resolution कम करने से हमारा क्या हो रहा है? We are reducing here and leaving the rows and columns. So after some time you start losing all the details of your entire image. So this will be your topic for your lab. पूरा ऐसे करके देखना है. You have to start with a bigger image and you have to keep reducing, and you have to do it at least 1, 2, 3, 4, 5 iterations you have to do, so as to see कि कैसे change हो रहा है. So this is how your spatial resolution actually affects. इसका कोड थोड़ा सा देख सकते हो. If you want to, I'll explain it. हम लोग ने क्या करा, पहले एक इमेज रीड करी, उसका शेप देख लिया. शेप हमारे पास जो भी था, I think it will be a 512 cross 512. हमने इसको रीसाइज कर लिया. फिर देखा, actually this will be 512 cross 512 cross 3, क्योंकि ये कलर इमेज रहेगी. फिर हमने क्या करा, शेप लिया और हमने कोई भी एक प्लेन ले लिया. इसका क्या मतलब है, हमने कह दिया 0, 1, 2 कोई भी प्लेन होता है, तो BGR में हमने रेड प्लेन ले लिया. ठीक है, रेड प्लेन लेके हमने फिर उसकी शेप देखी. फिर उसके बाद हमने क्या करा, कलर में इसको ग्रे में कलर करके चेंज करके देखा. सो दिस इज, वी हैव यूज्ड अ इनबिल्ट फंक्शन टू रीसाइज. I will also give you code. अब ये आपको without inbuilt function भी करना है. I have the code for that also, but we will discuss it after you try to do it yourself, and then we can discuss. So this is called, अच्छा, अब down sampling की बात आई. We are talking about samples here. You have to understand that these are all signals. Why are they signals? Because ultimately everything that you're getting here is a signal. हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे सिग्नल ही मिलना है. आउटपुट इज अ सिग्नल. So that is why all these images are actually your signals, which are converted into a format for visual appeal. Now what will happen जब हम सिग्नल कोई भी ले रहे हैं? अब let's understand what is aliasing. So suppose ये हमारे पास सिग्नल है, right? इस तरह का वेव फॉर्म है. अब हम अब जब हमारा सैंपल, सपोज हम सैंपल कर रहे हैं इधर एट दिस रेट, इतने डिस्टेंस पे हम सैंपल कर रहे हैं. सैंपल मतलब हम इस सिग्नल की वैल्यू ले रहे हैं इन द डिजिटल फॉर्म. इतने इतने इंस्टेंसेस पे हम वैल्यू ले रहे हैं. इज इट ओके? ये कॉमन टाइम इंटरवल है, और इस टाइम इंटरवल पे आई एम जस्ट टेकिंग वैल्यूज ऑफ दिस सैंपल हियर. सो दिस इज नोन एज डिजिटाइजेशन.
अब मैंने क्या करा, जब हम इसको सिर्फ रेड पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, सो किस तरह का वेव फॉर्म दिख रहा है एक्चुअली? वेव फॉर्म जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह का वेव फॉर्म दिखेगा, यस और नो? क्योंकि हमें पीछे का सिग्नल तो पता नहीं है, वी आर जस्ट कैप्चरिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, वी आर कैप्चरिंग द वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो हम जब इसके डिजिटल फॉर्म देखेंगे तो हमें सिर्फ रेड पॉइंट्स दिखेंगे, और रेड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम एक नेचुरल सा जब कर्व बनाएंगे तो ओरिजिनल सिग्नल से एकदम अलग है, यस और नो? Yes, ma'am. Yeah, so this is known as aliasing. Aliasing can arise when you sample a continuous signal or image when your sampling rate is not high enough. अब हम लोग को सैंपल हम लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? It is not high enough to capture amount of detail in your image. Can give you the wrong signal, image and alias. तो अब हमारे पास एक alias आ गया है इसका. It is a wrong image. Formally, the image contains structure at different scales called frequencies in the Fourier domain. अब if you start looking at signals in terms of frequencies, एक पूरा topic है Fourier domains का, which students are very afraid of, but actually you have to understand that whenever you're talking about signals, frequency और amplitude आएगा ही हर signal में. Is it clear or not? एक सैंपल में कोई भी वेव फॉर्म होगा तो एक फ्रीक्वेंसी भी होगी और एक उसका एम्पलीट्यूड भी होगा. यही चीजों से डिफाइन होता है कि नहीं होता है सिग्नल? यस मैम. Yes, ma'am. सो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या हुआ, कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, राइट? ये टाइम पीरियड है. हम लोग जनरली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन द टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड हमारा एक्चुअली ये है, दिस पार्ट. अभी हमने क्या करा है, बहुत देर में कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी. हमारा फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी. सो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटी है, बट हम इंटरवल क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं. सो सैम्पलिंग रेट मस्ट बी हाई इनफ टू कैप्चर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इमेज. तो अब हमारा पूरी इमेज है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में. अगर इसको देखोगे, अगर ये इंटेंसिटीज के टर्म्स में देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मेरे पास ये ग्रे स्केल इमेज है, ये पीछे बैकग्राउंड ग्रे दिख ही रहा है ब्लू इमेज में, सपोज यही पिक्सेल वैल्यूज है, तो क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू विल बी, सपोज इट इज 200 या 130 140. सो 130 130 130 130 130 ऐसे सबकी 130 वैल्यूज होंगी ऑल पिक्सेल्स की. सो देयर इज नो चेंज जहां कहां होगा, जब हमारे पास सडनली एक इमेज है. नाउ इसको इस तरह से देखो, सपोज एक इमेज है इस तरह का, एप्पल है, राइट? ये है. अगर हम इसको अक्वायर करें इन टर्म्स ऑफ इमेज, आई टेक अ डिफरेंट कलर. सपोज ये इमेज है हमारी, ऐसे अक्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस पिक्सेल के बाद इधर आओगे तो चेंज दिखेगा एक सडनली इंटेंसिटी वैल्यू में. इंटेंसिटी वैल्यू सपोज यहाँ पे हमारी थी 130, यहाँ पे डार्क हो जा रहा है, हो सकता है ये 200 हो, ये भी 200 है. तो क्या होगा, जहां जहां एकदम से एजेस आएंगी वहां वहां एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी. अगर डार्कर इमेज है तो लेस होएगी, मतलब इंटेंसिटी वैल्यू. अगर लाइटर इमेज है तो हायर इमेज एंड इंटेंसिटी वैल्यू आ जाएगी, बट देयर विल बी अ चेंज. wherever there is a change you can understand यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है. उस दैट जहां पे भी चेंजेस ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, there is a high frequency, frequency is changing suddenly, because अभी हमारा क्या था, there is no change, कोई फ्रीक्वेंसी इधर जीरो है, एक्चुअली there is no change. इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी इन जगहों पे suddenly there is a change and the rate of change is high here. So you can understand that when I sample the rate, I must be able to capture the highest frequency in the image. जहाँ पे maximum change है image में, वो मेरे को capture करना बहुत जरूरी है. तो जहां जहां edges होंगे वहां वहां मेरे को highest frequency change होगा, तो मेरे को change वो capture करना है. तो अगर हम इस तरह से करते तो भी देखो अलग वेव फॉर्म जो मैंने बताया. अब एलियासिंग को अवॉइड करने के लिए एक नाइक्विस्ट, एक शैनन सैम्पलिंग थ्योरम सबने पढ़ा होगा, ये तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं?
You have basic electronics पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? नो मैम, ये नहीं पढ़े हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं पढ़ा है? मैम वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है लेकिन ये थ्योरम नहीं पढ़ा मैम थ्योरम नहीं पढ़ा है। Anyways, you can search Shannon sampling theorem. क्या होता है? That to be able to जो हमें अगर हम डिजिटाइज कर रहे हैं कोई भी सिग्नल को और हमें अगर वापस वो सिग्नल रिक्रिएट करना है, I should be sampling at a rate greater than or equal to maximum frequency of that signal. और ये सैम्पलिंग रेट को क्या कहते हैं? नाइक्विस्ट रेट। अब इधर देखो, अगर हम इस तरह से सैंपल कर रहे होते हैं तो हमारे पास अगर ये क्रॉसेस आए हैं तो अगर हमें रिक्रिएट करना है तो हम क्या रिक्रिएट करते हैं? हमारा पूरा रिक्रिएट हो जाता? यस और नो? हो जाता कि नहीं हो जाता? इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रही है इस पूरे सिग्नल में? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? मैम मिडिल में। यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस है। सो अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हम इसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इतना होना चाहिए सैम्पलिंग रेट, तो हम सारे सिग्नल को इसी रेट पे ले रहे हैं और फिर उसके बाद वी आर एबल टू रिक्रिएट द एंटायर सिग्नल। अगर हम इसके हिसाब से लेते तो हो सकता है हमारा काम किससे हो जाता? अगर हम ग्रीन से देखते तो हमारा इधर 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 इतने रेट पे भी लेते तो काम हो जाता। तो बट हम इधर जब वो लगाते तो हम इधर कैप्चर करते फिर इधर कैप्चर करते, तो हमारा ये वाला पार्ट लॉस हो जाता। सो वी विल लुक एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सैंपल and we'll be able to recreate our entire signal. Is this clear or not? This is the simplest explanation that I can give for this. Clear है? Yes, ma'am. तो कोई भी सैंपल, अगर आपके पास कोई भी सिग्नल है जहां पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से if I decide my sampling rate, then I'll be able to recreate the entire signal. Otherwise, what will happen? Aliasing will appear. अब सेम पे करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने सेम रेट कर दिया एग्जैक्टली 2b, हमने क्या बोला है? शुड बी ग्रेटर देन 2b। सेम रेट पे करेंगे तो अभी क्या हो गया? अगर हम इधर सैंपल कर रहे हैं, I'll be capturing only zeros, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? ऑल जीरोस। अगर हम अबव 2b करते हैं तो ऐसे आया आउटपुट। So it should be actually double the maximum frequency. So this is 2 into maximum frequency. This can be justified like this. So अगर 2b से maximum है, ज्यादा है, तब हमारा हो जाएगा। Is it okay? So this is your Nyquist sampling theorem or Shannon's sampling theorem, and this is known as the Nyquist rate, twice the maximum frequency of the signal. So similarly, आप images में imagine करो. So images में if I capture like this is okay. I'll be able to replicate. This is okay. इधर भी क्या है? यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, तो मेरे पास यहाँ पे दिखेगा व्हाइट है। अब हम इधर करेंगे तो मेरे को क्या दिखेगा? आउटपुट इज कंप्लीटली ब्लैक। आई एम कैप्चरिंग जस्ट 4 वैल्यूज एंड ऑल ऑफ देम आर ब्लैक, सो आई आउटपुट इन ब्लैक इमेज। अगर हम इधर करेंगे तो क्या होगा? ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, लेकिन हमारा ये वाला लॉस्ट हो जा रहा है ब्लैक। सो हमें इधर व्हाइट ब्लैक दिखेगा बट इधर हमें सारा व्हाइट दिखेगा, इधर में व्हाइट दिखेगा बट इधर हमें सारा ब्लैक दिखेगा, बिकॉज माय बोथ द सैंपल्स आर टेलिंग मी इट्स अ ब्लैक आउटपुट। आर यू क्लियर विद दिस? Anybody has any doubts, you can please ask right now. So now up sampling. Okay, अब हमें क्या करना है? This was what we were down sampling. अब up sampling में क्या है कि हमें बीच की वैल्यूज की वैल्यू चाहिए है। So what are we trying to do? अब मेरे पास सपोज एक
इमेज है 256 by 256 एंड आई से इसको 300 क्रॉस 300 में कन्वर्ट कर दो। सो अब इसको हम इस तरह से इमेजिन करें कि हमारे पास इस तरह का एक इमेज है and in the same size I am taking another grid इस तरह से एक ग्रिड बना रहे हैं और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं और हमें बीच की वैल्यूज अब निकालनी है। जैसे ये वाले पिक्सल हो गए तो मेरे को इसमें क्या वैल्यू भरनी है, तो एक तरह से इसको ये मान के चलो कि मेरे पास 4 पिक्सेल्स है और बीच की वैल्यू मेरे को चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैज नाउ इंक्रीज्ड इन द सेम रेजोल्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा ये समझ में आया है क्या बोल रहे हैं? इमेजिन करो कि एक इमेज है, ठीक है, और उसको हमने I have divided it into certain grids. इसको फिर से देखते हैं। अभी हैंग हो गया थोड़ा सा, just wait. So imagine that I have an image black वाली और उसके ऊपर मैं एक इस तरह का एक और ट्रांसपेरेंट पेपर एक तरह से बना के रख रहे हैं क्योंकि इमेज का साइज तो यही है, बट आई वांट हायर रेजोल्यूशन। सो मेरे पास ओरिजिनल 256 क्रॉस 256 था, अब मैंने उसी साइज के एक और ट्रांसपेरेंट पेपर लिया, उसमें 300 क्रॉस की ग्रिड बनाई और उस पेपर को इसके ऊपर रख दिया। तो इस तरह का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस और नो? यस यस मैम। हाँ, तो अब हमें इधर एक बीच के पॉइंट्स की वैल्यूज चाहिए एक्चुअली। तो मेरे पास 4 वैल्यूज है और मेरे को बीच की वैल्यूज चाहिए। सो दिस इज नोन एज अप सैम्पलिंग बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वैल्यूज हियर, नंबर ऑफ पिक्सेल्स हियर। तो उसके लिए अब हमने क्या करा, देयर इज अ स्टैंडर्ड बाइलिनियर सैम्पलिंग फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, ये माना जाता है कि ये जो इमेज आई जो पिक्सल होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, जो 4 इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। सो इन बाइलिनियर सैम्पलिंग वी अज्यूम दैट देयर 4 नेबर्स आर मोस्ट likely to affect the pixel value or the intensity value of this particular pixel. So for this अब ये भी मान के चलते हैं कि इसमें this is nearer, तो इसकी वैल्यू इसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। So अब ये मान लो कि this is like if this is x plus a, तो x इधर जा रहा है, x हम लोग ने सेम इधर रखा हुआ है, x इधर बढ़ रहा है, ओके x1, तो दिस इज x plus a, ये a हो गई वैल्यू और ये b हो गई क्योंकि y इधर इंक्रीज कर रहा है और x इधर इंक्रीज कर रहा है। ये नॉर्मल कन्वेंशन है, वरना हम लोग की इमेज में जनरली हम लोग x और y लिखते हैं, बट इधर ये नॉर्मल कन्वेंशन यूज हुआ है। सो x plus 1, x y plus 1, x plus 1 y plus 1, ये पिक्सेल्स हो गए। क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा होएगा अभी f x y। अच्छा इसका क्या है कि ये a डिफरेंस पे है, ये b पे डिफरेंस पे है, we are multiplying it with 1 minus a into 1 minus b. Why are we doing this? कोई समझ सकता है, कोई बता सकता है? इधर देख लो अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है। सो एक्स वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 y1 इज मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअली देखो ये येलो है तो ये वाले डिस्टेंसेस से मेजर मल्टीप्लाई होगा। अगर ये तुम्हारा सो x1 y1 के पास है, देखो आइडिया ये है कि x1 y1 के पास है, xy is nearer to x1 y2. Are you able to understand this? ये तो पास में है, दिख रहा है ना? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे because this is more. So हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसका वेट इससे मल्टीप्लाई करेंगे because it is closer to this. हमें ज्यादा वेट देना है, जिसके पास है उसको ज्यादा वेट देना है। That is why I multiply this with yellow distance, this part with this distance. So हम क्या करेंगे, 1 minus a into 1 minus b into fxy. So in terms of fxy, here you can see
1 माइनस ए कितना हो जाएगा, ये सब 1 पिक्सल की डिफरेंस है, तो दिस विल बिकम 1 माइनस ए, दिस विल बिकम sorry 1 minus b, this will become 1 minus a इधर. So 1 minus a into 1 minus b into fxy. So this part is multiplied with this distance into this distance into this much. फिर purple is multiplied by this distance from x and y. So दोनों distances calculate कर लेंगे a और b के terms में. फिर ये वाला green is multiplied by this part and this part. Pink is multiplied by this distance and this distance. An idea is to give more weights to the pixels which are nearby. That is why उसके opposite 1 minus a, 1 minus b ऐसे करते हैं. So this is a standard formula of bilinear sampling. अब इसमें क्या है, जब हम इस तरह से करते हैं तो it becomes simple for us because we are just taking 4 pixels. इसी के और भी फॉर्मूले हैं. There's something called a bicubic filter upsampling. You can see अभी हमने, अच्छा एक nearest neighbor भी है. So let's understand. Nearest neighbor में क्या होगा? Suppose अगर हम ये इमेज है, अगर ये बताए, अच्छा ओके इसको ब्लैक से करती हूँ मैं. इस तरह से कोई हम लोग सपोज वी आर डूइंग अप सैम्पलिंग, मेरे को ऐसे कन्वर्ट कर देनी है नई इमेज इतने सारे पिक्सेल्स में. फिर क्या करते हैं, ये पिक्सेल्स हमारे, फिर इनको 1 क्रॉस 1 के 1 पिक्सल की डिफरेंस पे जब ले जाएंगे तो ये पूरी एक्सपैंड होके बड़ी इमेज बन जाएगी. तो अब बीच की वैल्यूज ले रहे हैं, तो अब इसमें क्या हो गया, इस पिक्सल पे सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है कि क्या वैल्यू आएगी. आई विल लुक एट द ऑल द नेबर्स हियर. नेबर्स कितने हैं, 4 है, और इसमें नियरेस्ट नेबर मेरा रेड है तो रेड ही हो जाएगा, ये वाले तो क्लियर है. अब सपोज यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ये वाले पिक्सल पे. सो इट विल लुक एट ऑल दीज नेबर्स. सबसे पास वाला उसको रेड में होगा इसलिए वो रेड में चला जाएगा नया पिक्सल. नियरेस्ट नेबर में सिंपली जहां पे भी नियरेस्ट पिक्सल आ रहा है, सपोज ये वाला है, इट इज क्लोजेस्ट टू ग्रे, सो इट विल गो टू ग्रे. सो नियरेस्ट नेबर में बड़ा क्लियर है, बस आप वैल्यूज डिस्टेंस निकालो. डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस भी हो सकता है, और जो उस कलर का पिक्सल का कलर है वही कॉपी कर दो. सो दैट इज हाउ यू डू नियरेस्ट नेबर. सो यू कैन सी हियर इन दिस इमेज पिक्सेलेशन है, राइट, इट इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी. बाइलिनियर में हम लोग ने ये वाला इंटरपोलेशन यूज करा, फॉर्मूला यूज करा टू फाइंड आउट, टू एक्सपैंड द इमेज, सो इट इज मच क्लियर एज कंपेयर टू दिस. बाइक्यूबिक और बेटर है बिकॉज ये कैलकुलेशंस थोड़े से इंटेंसिव हैं इसमें. सबको दिख रहा है डिफरेंस? Are you able to see the differences? Yes, ma'am. Right? So if I look at all these interpolation examples, so my nearest neighbor में अब हम लोग क्या कर रहे थे, बीच के पिक्सल में इन चारों का वैल्यू लेके और इनकी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ले रहे थे. नियरेस्ट नेबर में अब ये 4 है, कौन सा सबसे क्लोज होगा वो देख के यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के और उसके बाद एक ले लिया. बाइक्यूबिक में क्या करते हैं, वी आर लुकिंग एट 16 पिक्सेल्स, 4 क्रॉस 4 नेबरहुड को ढूंढते हैं, और ये 16 पिक्सेल्स की वैल्यूज को हम मैथमेटिकली कंबाइन करके एंड देन वी जनरेट द मिडिल पिक्सल जो नया हमें चाहिए है. सो दिस इज कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव and it is used in very image like Adobe Photoshop, in the image editing programs it is used. And कुछ ऐसे और भी interpolation algorithms है जो कि they are kind of proprietary of a lot of companies, जैसे Canon है, इन सब के अपने अपने interpolation वो है जो कि ये लोग अपने कैमरास में यूज करते हैं, which are not available for public use, but they are time intensive and they are complexity intensive. So for us generally we use the bilinear interpolation. ये वाला पार्ट है. किसी को डाउट है कोई? Anybody wants to ask anything?
बेटा कुछ नहीं क्लियर हो तो पूछ लो। So, इसका अब कोडिंग पार्ट जो आता है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन इनबिल्ट मैकेनिज्म्स जिसमें कि हम लोग कोई भी इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। नियरेस्ट के लिए एक इंटर नियरेस्ट ऑलरेडी है। सो ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकली लैब में देखेंगे वील सी हाउ टू यूज इट एंड वील सी द परफॉर्मेंस। फिर इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Anybody any problems you can ask me, otherwise I'll end the class.